Continuing the chapter of excretory system. Now the next is, after the structure of the kidneys and the structure of the excretory system, there is the structure of nephron. Next is structure of nephron. The structure of nephron. Nephron is what? It is a unit of excretion, है ना? And the structure of nephron. The nephron that consists of the further parts, that is the glomerulus, that is the blood vessels. Okay, it's not a part of the nephron, but it is in contact with the nephron, and the functioning of nephron requires those blood vessels, right? So initially it has a cup-like structure called as Bowman capsule. Along with it, it has the renal tubules. ठीक है, सो दो मेजर पार्ट्स है इसके नेफ्रॉन के. ग्लोमेरुलस को कनेक्शन है इसके साथ, पर पार्ट नहीं मानते इसमें. ठीक है, ऑलरेडी आप 10th में वैसे पढ़ चुके हो. तो नेफ्रॉन हैज द टू मेजर पार्ट्स, दैट इज वन इज द cup-like structure, and this cup-like structure, that is the Bowman's capsule, right? So start making this. It is a cup-like structure. This is the cup-like structure. It is a Bowman capsule, and this is the initial part of the nephron. You can make it straight, you can make it tilted, you can make it more curved like this, anyways. ठीक है, जैसा मर्जी बना दो इसको. सीधा बना सकते हो कप को, टेढ़ा बना सकते हो, इस तरह बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, जैसे मर्जी. Done. So this is the first part, that is the Bowman capsule, or we also call it as the renal capsule. ठीक है जी, renal capsule वैसे किडनी को बोलते हैं, तो इसको नहीं बोलते. नहीं, जैसे मर्जी बनाओ, सीधा बना लो, ऐसा, ऐसे भी बना सकते हो. आपकी बुक में मेरे ख्याल से इधर को इसका फेस करके बनाया है. ठीक है, आप इधर बना सकते हो, जैसे मर्जी. ठीक है. Then there is the further, that are the renal tubules. The renal tubules comprises of the three further parts, that is the PCT, DCT, and in between is the loop of Henle. ठीक है. So फिलहाल this is the Bowman capsule along with the PCT. PCT, a broader tube-like structure, the first initial tube-like structure. Now this descends in its diameter. सबसे पहले ये क्या है, ये पीसीटी थोड़ा सा ट्रेवल होके, मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है. उसके बाद दिस डिसेंड्स इन द डायमीटर. डिसेंड्स इन डायमीटर मींस इट बिकम्स नैरोअर. ओके, बिकमिंग नैरो, दिस फॉर्म्स द यू शेप्ड स्ट्रक्चर. नैरो, आप जितना थोड़ा सा नैरो इसको बना रहे ना कंपैरेटिवली, so this forms a U-shaped structure, and this U-shaped structure that has an end from where it broadens up again. From here it broadens up again, forming the third part of the renal tubule, and that is the DCT, that is the distal convoluted tubule. The distal convoluted tubule can be arranged in any form again, and this DCT, that is a bit broadened, or you can say wider than the loop of Henle. ठीक है. So इसमें आपने इसको नैरो नहीं रखना है, इसको भी वाइडन रखना है. It should be widen. Okay, wider than the loop of Henle. So this is the DCT. Getting? Anji, getting or not? ठीक है. Further, all this part that connects the various of the collecting ducts. ऐसे यहाँ पे जैसे मैं ये बना रही हूँ, यहाँ पे branches ये वाली show कर रही हूँ. So that means the various of the nephrons they are attached to it. So this is the final last, that is the collecting duct. ये collecting ducts इकट्ठी होके क्या बनाती हैं? Numerous of the collecting ducts, numerous of nephrons end up by the collecting duct. है ना? सिंगल collecting duct कितने सारे nephrons के लिए आ रही है? यहाँ पे तो हमने 3 शो किए हैं, लेकिन बहुत सारे नेफ्रॉन सिंगल कनेक्टिंग डक्ट के साथ कनेक्टेड है. ठीक है. नाउ ऑल दीज कलेक्टिंग डक्ट्स विल बी फॉर्मिंग calyx. All the calyces will be forming renal pelvis. Done. Okay, getting clear? Now this is the part of the nephron. This is the basic structure of the nephron first. ठीक है. The basic structure of the nephron comprises of the capsular part and the tubular part. Done. ठीक है. लेबलिंग हम करेंगे एंड में. ठीक है जी, ये बन गया पहले. डन.
Now coming to the further is the next is the part that is the glomerulus or the blood vessels. The blood vessels that which reaches up to the Bowman capsule. उस दिन हमने किडनी का स्ट्रक्चर बनाया था, याद है आपको किडनी स्ट्रक्चर, और उसमें मैंने आपको बताया था as the blood vessel enters into it gets bifurcated into the various of the branches, है ना. ब्रांचेस के आगे ब्रांचेस, सब ब्रांचेस और कितनी सारी ब्रांचेस that leads to the very fine tubules of the arteries, है ना. And the arteries branches are called as arterioles. So what is leading to the entry of this Bowman capsule is the, or what brings the blood to the nephron, that is the arteriole. आर्टरी ही है, समझ रहे हो. जहां नहीं समझ आएगा पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि सारा कंसेप्ट इसी के बेस्ड है, यही सारी चीजों के बेस्ड. So what is bringing the blood, impure blood towards each nephron, that is an arteriole. Getting? So this is arteriole. Arterioles क्या हैं? हाँ जी, what are the arterioles? जो ब्लड इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही हैं, एंड दीज आर द फाइन ब्रांचेस ऑफ द आर्टरीज. ठीक है, ये फाइन ब्रांचेस ऑफ द आर्टरीज है. सो इस तरह से आपने इसका क्लस्टर बनाना है, बट प्रोवाइडेड क्लस्टर जो बनेगा इसके अंदर दैट शुड नॉट टच दिस मेम्ब्रेन. ये बीच वाली जो मेम्ब्रेन है, व्हाइट वाली लाइन जो है, इसको टच नहीं करे. ये व्हाइट वाली लाइन को थोड़ा थिक बना लो ताकि आपको नजर आए, और इसको हमने टच नहीं करवाना, बाकी सब ठीक है. ठीक है, जो आपने ब्लड वेसल बनाना है, अब वो इस तरह बनाना है कि वो Bowman कैप्सूल की मेम्ब्रेन को टच नहीं करेगा. राइट, सो मेक अ क्लस्टर ऑफ द ब्लड वेसल दैट विच फॉर्म्स अ ह्यूज क्लस्टर, अ नेटवर्क अगेन within this Bowman capsule. And what comes out after this, that is again the Bowman capsule से बाहर again an artery. यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं हमने इस तरह से शो किया कि that is not an artery, this is only a vein which is coming out or arising out. So this is not a vein, this is the artery itself, that which comes out. Getting? हाँ जी, क्लियर? डन हुआ इतना? बस रैंडम ऐसे ऐसे कुछ भी बना दो. डबल मेम्ब्रेन से बनाया मैंने, आपने ऐसे रफ सा जैसे क्लस्टर बनाते हैं ऐसा बनाना. ठीक है, रैंडम जैसे मर्जी. ठीक है, पर क्योंकि मैंने डबल मेम्ब्रेन बनाया तो मैंने इसको हर चीज को डबल डबल कर दिया. ठीक है, क्लस्टर शो होना चाहिए, मेम्ब्रेन्स का क्लस्टर शो होना चाहिए. सिर्फ ये ध्यान देना कि ये बीच में कहीं पे जुड़े नहीं. ठीक है, ये Bowman कैप्सूल की मेम्ब्रेन से जुड़ेगा नहीं, बस इतना ध्यान देना इसको, क्योंकि उसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन खाली होता है. दैट इज द, जैसे आपने एल्वियोलाई के बीच किया था ना, एल्वियोलर वॉल जो होती है एंड द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, इन दोनों के बीच में गैप होता है. सेम टू सेम यहाँ पे भी गैप होता है. ठीक है, getting done? Have you drawn till this? So this is what, this is an artery that which is bringing the blood, that is an impure blood, towards the nephron. अब जब ये नेफ्रॉन की तरफ लेके आएगा इम्प्योरिटीज, सॉल्ट्स, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए स्पेशल पोर्स लगे हुए हैं, स्लिट्स लगी हुई हैं, जिनको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स. ठीक है, दीज आर द स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स. तो इसको आप पोरस बना सकते हैं. इस तरह से आपने बीच बीच में लाइंस इरेज कर दो अपने बीच में, क्योंकि हम पेंसिल से बनाते हैं. यहाँ पहले ही आप इसको जब भी ड्रॉ करें तो इसमें डॉटेड शो कर सकते हैं आप. ठीक है, सो दिस इज, इट बिकम्स, this is a membrane epithelium of Bowman capsule, that which is porous in the structure. Getting? All the salts or the various salts which are harmful, that which require the removal from the body, those all come out and get filtered from here. Done? ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे हम आते हैं, साथ साथ में पहले लेबलिंग खत्म कर लें. So this is the afferent arteriole, that which is bringing the blood towards the nephron, and this is the one that which is getting it out from here. पर अब यहाँ पे होता क्या है, एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारा. मैंने अभी बोला कि ये फिल्ट्रेशन कराएगा, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को बाहर निकालेगा, कहाँ ऐड करेगा, नेफ्रॉन में. ठीक है, फिलहाल नेफ्रॉन आपको नजर आ रहा है, यहाँ से सॉल्ट्स निकल के इधर आ गए, यूज्ड वाटर निकल के यहाँ आ गया, मींस यूरिन यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, है ना. जितना भी फिल्ट्रेशन करना था उसने ब्लड का वो कर दिया.
यूरिन प्रिपेयर होके यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है इन द बॉम्बिंग कप्स. इट ट्रेवल्स फर्दर थ्रू द पीसीटी, थ्रू द लूप ऑफ एनले, थ्रू द डीसीटी एंड इट विल बी ऑल कलेक्टेड हियर. है ना, होगा तो ऐसे ही. बट हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं आर किडनी बेसिकली फॉर 1 डे का जो फिल्ट्रेशन है, ये जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 डे का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस का रिजल्टेंट है, यानी जो फिल्ट्रेट हमारे पास तैयार होता है एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, दैट इज नियरली 180 लीटर्स पर डे. ठीक है, 180 liters per day approximate. And do we urinate out that much? No, we urinate out only 1.8 liters, hardly 2 liters. है ना, तो यूरिनेशन जितना हो रहा है that is only 1% of the one which is filtrate out. तो 99% कहाँ गया? 99% जितना रिमूव हुआ था वो वापस फिर से ब्लड में ऐड हो जाएगा. बट रिवर्स कुछ नहीं जाना, हमारी बॉडी में रिवर्सल प्रोसेस कहीं नहीं जाता. तो जब ये वापस इधर निकल ही चुका है, ये तो आगे आगे बढ़ेगा, है ना, फिल्टर तो आगे आगे बढ़ेगा, जो फिल्ट्रेशन हो चुका है उसको वापस रीअब्सॉर्ब कराने के लिए यही वाला ब्लड वेसल जो है, दिस मेक्स द नेटवर्क अराउंड द नेफ्रॉन. ठीक है, यही वाला ब्लड वेसल इसी तरह से ये ऐसे नेटवर्क बना देगा दैट इज अराउंड द नेफ्रॉन, ताकि ये फर्दर अपनी ब्रांचिंग इतनी ज्यादा प्रोवाइड कर दे यहाँ पे कि 99% वापस इकट्ठा कर पाए. गेटिंग डन? समझ आ रहा है? हाँ जी. रीएब्सॉर्ब क्या होगा? नहीं, वो हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए है, इसलिए तो रिमूव करने हैं, पर रिमूवल हमारे बॉडी से बाहर नहीं जा पाता ना. यूरिनेशन का जो सिस्टम बनाया है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी फिलिंग अप कैपेसिटी लगा लो और उसकी यूरिनेटिंग आउट कैपेसिटी लगा लो, तो वो ले दे के सिर्फ 1% है. जब उसका काम स्लो है, किडनीज का काम ज्यादा है, तेज है, क्योंकि हम मिलियंस है. जब किडनीज का काम तेज है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर का काम स्लो है, तो कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना. दिस मेक्स इट आउट अगेन. ठीक है, ये वापस ब्लड पहले तो रीअब्सॉर्ब करता है, फिर ये ट्यूबुलर पार्ट्स ही सिक्रीट कर देते हैं, अल्टीमेटली 99% ब्लड में चला जाता है. ये ब्लड अब यहीं पे लेके थोड़ा ना चला जाएगा, इसको लेके जाएगा घूम फिर के किसी दूसरे नेफ्रॉन में डाले, वही वाली इम्प्योरिटीज किसी दूसरे नेफ्रॉन से निकलेंगी, फिर कहीं और से कहीं और से, अगर चला भी गया तो वो पूरी बॉडी में घूमते हुए वापस फिर से आएंगे इसके पास, है ना. सो अप्रोक्सीमेटली ओनली 1% ऑफ द फिल्ट्रेट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉर्मल किडनीज, वो रिमूवल होता रहता है, बाकी हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है. ठीक है, एकदम से सारा रिमूवल पॉसिबल भी नहीं है. अगर सारा का सारा रिमूवल एक ही बार में हो जाएगा तो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट हिल जानी है. कई बार क्या होगा, हमारी रिक्वायर्ड चीजें बाहर निकल जाएंगी बॉडी में से, है ना. रिक्वायर्ड चीजें लाइक आपने पानी जो पिया, आपने कंज्यूम किया, वो पानी बिना यूटिलाइजेशन ही बाहर रिमूवल होता जा रहा है ना. जब भी यूजुअली हमें जो डिजीजेस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक लूज मोशंस आर देयर, है ना, तो वाटरी स्टूल्स होते हैं उसमें. तो वाटरी स्टूल्स मींस द वाटर दैट व्हिच यू आर गेटिंग इन विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड, इट इज मूव्ड आउट. तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है? दैट इज वेरी वीक ना, है ना. हमारी वीकनेस आ जाती है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा हम थके थके से लगते हैं, हमारी बॉडी बैलेंस्ड तरीके से काम नहीं करती. क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें रिमूवल में जा रही, अभी यूज तो हुई नहीं है, हमें फायदा दिया नहीं, लेकिन रिमूव आउट होगी पहले. ठीक है, सो ऐसा नहीं होगा, हमारी बॉडी हर चीज यूज करने के बाद भेजेगी. अब यहाँ पे बात आती है कि प्योरिफिकेशन तो इसने 99% रीअब्सॉर्ब करना है, 1% इसने कुछ ना कुछ तो एब्सॉर्ब भी किया है ना, यानी कुछ ना कुछ तो ये यूरिनेशन से बाहर भी निकाल रहा है, तो वो वाला ब्लड तो प्योरीफाई हो रहा है ना. तो वो प्योरीफाइड ब्लड जो है वो वेन से होता हुआ बाहर जाएगा. सो वेन्स का कनेक्शन यहाँ कहाँ है? नेफ्रॉन के साथ भी तो कनेक्शन होना चाहिए ना, क्योंकि यहीं से वो प्योर ब्लड को उठाएगा. सो वेन्स जो है वो भी यहाँ पे क्लस्टर बनाती हैं, दैट मेक्स अ नेटवर्क अराउंड द पीसीटी. अब अपनी बुक्स में देखोगे, किसी भी रेफरेंस बुक में पीसीटी बहुत ज्यादा उन्होंने जाल बनाया हुआ पीसीटी के अराउंड. ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना, अगर आप वो बना सकें तो बना लीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज यू कैन मेक दिस सिंपल व्हाट आई एम मेकिंग. ठीक है, सिंपल नेटवर्क है ये वेन्स का और कैपिलरी, सॉरी वेन्स का और आर्टरीज का. ठीक है, सो दिस इज द ब्रांचिंग, ऑन दिस साइड देयर आर आर्टरीज एंड द आर्टरीज आर कंबाइंड विद द वेन्स. सो ये इस तरह से हमारे पास आर्टरीज है, ये आर्टरी ब्रांचेस है. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अब हमारे पास वेन्स की ब्रांचेस है. This is an artery and these are the veins. Getting? हाँ जी बेटा, ये समझ आया है? ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया, जो पर्पल लाइंस में शो कर रही हूँ, they represent the venules.
द ब्रांचेस ऑफ द वेन्स, एंड जो रेड बॉक्सेस टाइप जो लाइंस मैंने यहाँ पे बनाई है, दैट आर रिप्रेजेंटिंग द आर्टरियोल्स, द आर्टरीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे आर्टरीज है, ये खत्म हो गया। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द ब्रांचेस एंड फर्दर दिस इज द वीन्यूल। ये वेन है और ये प्योर ब्लड लेके जा रहा है। दिस इज द प्योर ब्लड इज कैरिड आउट फ्रॉम हियर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ वीन्यूल और द ब्रांच ऑफ द वेन। Here the impure blood was carried in. This was carrying the impure blood, and the impure blood was taken in by the afferent arteriole. Afferent arteriole. Arteriole लिखना है, artery नहीं लिखना, veneole लिखना है, vein नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये ब्रांचेस हैं, फाइन ब्रांचेस, बहुत बारीक सी ब्रांचेस जो बाद में रिजल्ट अप करेंगी नेफ्रॉन्स के पास पहुंचने में और आने में, है ना, मटेरियल को लेके जाने में और लेके आने में। So these are the afferent arterioles and the efferent arterioles. Getting done? Done ji? Now further, these are making the full, you can say, network. तो नेटवर्क के लिए भी आपने सिंपल क्या करना है, यही ब्लड वेसल को आपने जस्ट रोल डाउन करना है अराउंड द पीसीटी, डीसीटी एंड द लूप ऑफ एनले। ठीक है, इस तरह से आप इसको रोलिंग कराते जाओ। दिस इज द ब्लड वेसल दैट विच इज बीन रोल्ड डाउन लाइक दिस। सो कैसे भी आप इसको 3 डायमेंशनल में या जैसे भी आपसे हो पाए, जस्ट इसको रोलिंग शो कर दो। ठीक है, दिस इज द रोलिंग ऑफ द ब्लड वेसल अराउंड द renal tubules. Done? So something like this, the blood vessels, they form a network around the renal tubules. Done? So now label the various parts. This network of the blood vessels, that is called as glomerulus. Glomerulus. The filtration which is taking place from this, that is called as filtration, is called as glomerular filtration. And the rate by which it filtrates, that is the glomerular filtration rate, GFR. ठीक है, GFR की बात आगे जाके भी होगी हमारी, फिलहाल बस इतना समझ लो कि this is the glomerulus and from here the Bowman capsule that takes up the filtrate out. So this is the Bowman's capsule. Bowman's capsule. After this, this is the network of the artery as well as the vein. ये तो clear हो गया network, ठीक है। Below this, this was the PCT, ठीक है। So यहाँ पे इसको label करो. This is the PCT. Below it, below the network, network के पीछे PCT. PCT क्या है? That is proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule. Next is this U-shaped structure that is called as the loop of Henle. But loop of Henle में भी अब दो चीजें यहाँ पे देखो, एक तो हमारे को ये पूरा कॉन्टिन्यूस में लूप ऑफ हेनले नजर आ रहा है, यू शेप जो सबसे पहले बनाया था नेफ्रॉन में, है ना। दूसरा इसके ऊपर लिपटा हुआ ये सारा ब्लड वेसल, ठीक है। इन सिग्निफिकेंस टू द लूप ऑफ हेनले, द ब्लड वेसल दैट रोल्स अराउंड इट, सिर्फ लूप ऑफ हेनले के आसपास जो ब्लड वेसल रोल कर रहा है उस ब्लड वेसल को हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा, RECTA, वासा रेक्टा। डन, ठीक है।
अब लूप ऑफ हेनले में भी दो लूप्स हैं, एक नीचे जाती हुई एक ऊपर आती हुई। नीचे जाती हुई लिंब को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग लिंब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, राइट? राइट डाउन, आई एम जस्ट राइटिंग DL, यू राइट फुल डिसेंडिंग लिंब, ये पूरा डिसेंडिंग लिंब लिखेंगे आप, दिस इज डिसेंडिंग लिंब, ठीक है? सो DL स्टैंड्स फॉर डिसेंडिंग लिंब, ये वाला डन। DL ऑफ लूप ऑफ हेनले, और हेनलेज लूप भी लिख सकते हैं हम इसको। एंड गोइंग अप इज द ascending limb of, this is ascending limb of loop of Henle, डन। ये जो मैंने अभी टर्म्स यूज किए हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब और वासा रेक्टा, इनका सारा मेन फंक्शन होता है दैट इज इन काउंटर करंट, यानी आपकी जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है वो यहाँ पे होना, ठीक है? हाउ मेनी सॉल्ट्स, हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्ट हैज टू बी गिवन आउट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट अमाउंट ऑफ द वाटर शुड बी देयर, तो ये सारा ये काम करती है। ये आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, आगे जाके आएगा। सो दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब, ascending limb and the blood vessel, that is the vasa recta, done। next is loop of Henle के बाद this part, that is जो expand हो गया loop of Henle के बाद, that is the part called as DCT, that is distal convoluted tubule। अभी मैंने बताया था ना, renal tubules and Bowman capsule are the main parts, है ना? मेन इसके दो अगर हम कैटेगराइजेशन करें फॉर द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, इट इज वन बॉमन कैप्सूल एंड द सेकंड इज द ट्यूब्यूल। सो ट्यूब्यूल 1 PCT, ट्यूब्यूल 2 लूप ऑफ हेनले एंड ट्यूब्यूल 3 इज द DCT, ठीक है? गेटिंग? हाँ जी, समझ आ रहा है? डन। नाउ आफ्टर दिस लास्ट, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट्स, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, DUCT duct, okay? So this is the structure of the nephron along with the various parts description which we have studied. Further we will study that how these parts, they are responsible for the formation of the urine, that is the mechanism of urine and counter currents, right? So we'll be doing this further. Any question, any doubt here if you have? हाँ जी, अब यहाँ पे एक और चीज इसी में डायग्राम में ही समझ लो, ये जो बॉमन कैप्सूल है, फिल्ट्रेशन मैंने अभी क्या बोला था, कहाँ से होती है? ब्लड इम्प्योर ब्लड यहाँ आता है ग्लोमेरुलस में, ठीक है? यहाँ से फिल्ट्रेशन हो जाएगा और फिल्ट्रेट कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है? हमारा नेफ्रॉन के अंदर, यहाँ आ जाता है ना? फिल्ट्रेशन होने के लिए वो 3 मेम्ब्रेन्स को कवर कर रहा है, फिर से 3 मेम्ब्रेन्स, जैसे आपने उसमें एल्वियोलाई में की थी गैसेस की, ऐसे ही यहाँ पे सॉल्ट्स की 3 मेम्ब्रेन क्या है? एक तो ब्लड वेसल की अपनी मेम्ब्रेन, ठीक है? ये ब्लड वेसल की अपनी मेम्ब्रेन, एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल, देन देयर इज बॉमन कैप्सूल की मेम्ब्रेन, दैट इज एपिथीलियम ऑफ द बॉमन कैप्सूल, एंडोथीलियम एपिथीलियम, डन। बीच में जो स्पेस कवर्ड है यहाँ पे, जो मैंने दोनों हाथों को देखकर टच नहीं किया, ठीक है? ये जो बीच में स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है? सो द फिल्ट्रेट इज गोइंग थ्रू द एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन एपिथीलियम एंड देन इट क्रॉसेस आउट, डन, ठीक है? इसीलिए जब आपने भी बनाना है, क्योंकि अब आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, ये डायग्राम बनाने में भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, काउंटर करंट आ सकता है, एनी ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन गेट, राइट? तो यहाँ टचिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीबॉडी ऑनलाइन? नो क्वेश्चंस? हाँ जी बच्चे, ऑल क्लियर? ओके, so thank you so much, God bless you, study hard and stay